Bismillahirrahmanirrahim. Basically, I am basically presenting my topic on the behalf of Omni Academy, which has given me an opportunity to provide lecture on this particular domain of security. So I'm very pleased to him that he has given us a chance. Okay, so basically the topic of the lecture which I want to give in on my domain is security basically, and I will cover basically the course title of CompTIA Security Plus, which is basically the certification number S50501. Right, so my name is Sayyid Fahim Heather, and I'm basically giving you a lecture on this. So I will try to give you some overview regarding the security, that what is all about, right, and what is all about this security security CompTIA Plus, okay, and what are the contents that we will present you in the class, and what is all about. So basically जो S5 सिक्योरिटी CompTIA सिक्योरिटी प्लस है, इसमें आपके पास नॉर्मली जो है ये आपके जो पास है तकरीबन 6 डोमेन्स को कवर कर रहा है. You can see on the screen that we have threat attacks and vulnerabilities, right, and then technologies and tools. After that we have architecture and design, then we have identity and access management, then risk management, and the last cryptography and PKI. So all these 6 domains are basically enclosed in a single certification of CompTIA Security Plus, and all are very important domain as far as security concerned. So we will try to cover all these domains in this certification, right? As an exam point of view, you have around 90 minutes time, and you have a multiple choice questions and some drag and drop options. In 90 you have 90 questions. So, and we will cover further details, we'll cover in the class. Okay, so first of all I would like to take a topic of like what's port scanning. Okay, what is port scanning? Okay, and what is basically the penetration testing. So if you talk about the port scanning, basically we all know that we have certain threats and vulnerabilities in our systems, which every if you talk about any ethical hacker, then he wants to explore these vulnerabilities and try to find out those vulnerabilities and try to cope up with all these things. So first of all, we will try the port scanning. That you can see port scanning, basically the most common method to gather the information on network and a device. So what are the tasks we can perform the port scanning? Basically we can host discovery, and we can port scanning and service identification, then we will service version identification, and then operating system identification. So you can say कि बहुत सारी से हम लोग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. The last, basically we will also perform some port scanning tasks on ZanMap, through which we can identify some vulnerabilities and some threats. So you see it's इसमें आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया गया किस तरह से आपके पास ZanMap के थ्रू आपने जब पोर्ट स्कैन करेंगे तो आपके पास किस तरह से आपके पास एक ओवरव्यू आएगा सॉफ्टवेयर के अंदर. सो ये आपके पास एक ओवरव्यू नज़र आ रहा है कि किस तरह से आपने एक जब आप पोर्ट स्कैन करेंगे थ्रू ZanMap तो आपके पास इस तरह से आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर इसका फ्रंट एंड आएगा. इसके अलावा नॉर्मली पोर्ट आपके पोर्ट नंबर्स होते हैं वो नॉर्मली 0 से लेके 65,535 तक होते हैं, जिसमें से नॉर्मली 0 से लेके 1023 तक जो है वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, और आफ्टर 1024 से लेके 49,151 are registered ports. So we will cover basically all the ports in port scanning.
right? Then I want to explore the topic of penetration testing. What is all about penetration testing? Penetration testing क्या है कि आपके पास नॉर्मली पेनिट्रेशन टेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पास साइबर अटैक्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं एक तरह से, राइट? और यू कैन से रिसर्च भी करते हैं अपने नोट्स में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन मिलेगी कि यहाँ पे आपके पास पेन टेस्टर का मेन टास्क क्या है और वो किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं। राइट, यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक written definition as far as penetration testing basically test looks at a network vulnerabilities from outside the network, right? Normally हम इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं मेटास्प्लॉइट और कैनवस जो है इसके लिए हम नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप्स वाइज अगर हम जाते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ, तो नॉर्मली पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपके पास इसका टारगेट मेनली यही होता है कि किसी भी सिस्टम का सिस्टम जो है उसको एक्सेस किया जाए और उससे एक रिपोर्ट जनरेट की जाए फाइंडिंग्स की जो मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सके। इसके लिए बेसिकली व्हाट कैन डू द पेन टेस्ट कैन बी परफॉर्म बाय कोई भी एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स या इंटरनल स्टाफ जो है वो परफॉर्म कर सकता है। हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल चाहिए होते हैं इसके लिए। टेस्ट आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। तो नॉर्मली अगर आप फेजेस ऑफ पेन टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास नॉर्मली 4 फेजेस होते हैं। नंबर 1 इज योर प्लानिंग फेज, सेकंड वन इज योर डिस्कवरी फेज, एंड थर्ड वन इज योर अटैक फेज, एंड द लास्ट इज योर रिपोर्टिंग फेज। बेसिकली यू कैन सी अ NIST SP 800-115 बेसिकली एक सिक्योरिटी पूरा डॉक्यूमेंट गाइडलाइन है जो कि हम बेसिकली जब सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं तो हम बेसिकली स्टैंडर्डाइज बॉडीज़ की बात करते हैं। तो वहाँ पे NIST SP 800-115 जो है वो आपके पास एक स्टैंडर्ड गाइड है जो कि आपको टेक्निकल जो भी टेक्निकल आपको असिस्टेंस चाहिए, इट्स अ कंप्लीट गाइडलाइन बेसिकली। यू कैन फर्दर एक्सप्लोर दिस टॉपिक्स इन द क्लास। तो इसमें अगर आप देखें प्लानिंग फेज में आपको सिंपली यही बताया हुआ है कि आपके पास बेसिकली आप इसमें प्लानिंग एज अ नेम शोज प्लानिंग कर रहे हो, टाइमिंग स्कोप एंड ऑथराइजेशन इज गेनिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। द सेकंड फेज बेसिकली डिस्कवरी, राइट? डिस्कवरी फेज में आपके पास क्या करना है आपने कि जो टेस्टर होता है वो आपके पास रिकॉनेसेंस करता है और आपके नेटवर्क या सिस्टम या यूजर या एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, कलेक्ट करता है, राइट? तो ये डिस्कवरी फेज में आपके पास जो होता है ये टास्क परफॉर्म होता है। इसमें अगर आप देखें तो ओपन सोर्स रिसर्च है, कोड स्कैनिंग है, न्यूमरेशन है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है और उसके अलावा वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग है। तो ये सारे जो टास्क एग्जांपल्स हैं ये डिस्कवरी फेज में ऑफर हो रही होती हैं। थर्ड फेज जो कि हमारा है एग्जीक्यूट द अटैक, जिसको हम बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन भी कहते हैं, राइट? इसमें आपके पास क्या होता है कि नॉर्मली जो पेन टेस्टर होता है वो क्या आपके पास एक्सेस गेन कर लेता है, फिर उसके बाद कुछ प्रिविलेजेस को एक्सक्लेरेट कर रहा होता है, यानी वो एक नॉर्मल यूज़र से सुपर यूज़र बन जाता है और उसके बाद वो आपके पास क्या करता है आपके सिस्टम में एक तरह से पेनिट्रेट कर जाता है और वहाँ पे जाके कुछ एडिशनल टूल्स को इंस्टॉल कर देता है। सो लास्ट स्टेप बेसिकली रिपोर्टिंग, जहाँ पे आप क्या करते हैं कि जब वो टेस्टर जो है पूरा एक एग्जीक्यूट करने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट कर देता है, तो आखिरी में जाके वो रिजल्ट्स ऑफ द पेन टेस्ट डिस्क्राइबिंग द सक्सेसफुल ऑन हाउ टू फिक्स देम। तो एक तरह से एक रिपोर्ट जनरेट कर देता है जिसमें आपकी जो सारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, राइट, वो आपके पास एक्सपोज हो जाती हैं या उसको वो बेसिकली
यू कैन से मतलब उनको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया है पेन टेस्टिंग को, जो लेटर ऑन हम आगे जाके और डिस्कस कर सकते हैं। नाउ आई वांट टू गिव यू अ फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से आप लोग कोड स्कैनिंग परफॉर्म करनी होती है। आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक कि हम नॉर्मली इसमें एक जैन मैप के ऊपर एक कोड स्कैन करके देखेंगे एंड देन उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी इसमें आपको एक जैन मैप तो ये देखें आपके पास जैन मैप का जो है इसका जो GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये हम लोगों ने रन कर दिया है। नॉर्मली हम इसको कलाए लिनक्स के ऊपर भी रन कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली एक GUI सिस्टम और विंडोज़ के ऊपर इसको स्कैन करके आपको रन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो मेरा करंट सिस्टम है जिस IP के साथ अटैच है उसके साथ आपको स्कैन करके दिखाएंगे कि इसमें किस तरह से आपने पोर्ट स्कैनिंग करनी है, राइट। सो फर्स्ट आई विल गो टू योर माय कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ माय सिस्टम, राइट देयर। I want to know the configuration of my system through ipconfig/all, right? You can see the Ethernet adapter details and you can see कि यहाँ पे मेरी जो IP आ रही है वो 192.168.8.100 आ रही है, राइट। तो इसको बेसिकली मैं पोर्ट स्कैनिंग करूंगा इस IP के ऊपर, राइट, और हम देखेंगे क्या रिजल्ट जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे जाके मैं .100, राइट, और यहाँ से जाके मैंने -255 दे दिया, तो यानी जितने भी इस नेटवर्क के अंदर होस्ट होंगे सबको स्कैन करेगा, राइट। ओके, यहाँ पे आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे nmap -t4 AAV ये डिफरेंट बेसिकली इस कमांड का एक सिंटैक्स है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय T4 AAV एंड ऑल द थिंग्स, राइट। बट नॉर्मली अभी हम इसको एक स्कैन करके देखते हैं। ओके, यहाँ से मैं एक प्रोफाइल में लेके यहाँ से एक इंटेंस स्कैन सेलेक्ट कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग इसमें डिफरेंट स्कैन ले सकते हैं, पिंग स्कैन है, क्विक स्कैन है, रेगुलर स्कैन है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम एग्जीक्यूटिंग द बेसिकली इंटेंस स्कैन, राइट। ओके, एंड देन जस्ट स्कैन का बटन दबाएंगे तो ये मेरे सिस्टम को यू कैन सी यहाँ पे आपको स्कैन करता हुआ नजर आ रहा है सिस्टम। और यहाँ पे तो ये मेरे रियल टाइम पे मुझे स्कैन करके कुछ रिजल्ट जनरेट कर रहा है, राइट। इसने नॉर्मली देखें आपके पास दो जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को स्कैन किया है .800.101, राइट। इस वक्त यू कैन सी कि इसकी पोर्ट स्कैनिंग की रिपोर्ट भी आ गई हमारे पास। यू कैन सी डिफरेंट पोर्ट्स विच आर ओपन एंड क्लोज्ड, यू कैन सी हियर, राइट। तो डिफरेंस में आपके पास इफ 8.100 है इसकी भी रिपोर्ट आपके पास जनरेट हो गई है और 8.1020 की रिपोर्ट जनरेट हो गई है। यहाँ से आके आप होस्ट डिटेल्स भी ले सकते हैं, फर्दर और डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल का एक स्कैन हम लोगों ने पोर्ट स्कैन किया है। तो दिस इज बेसिकली द जस्ट अ डेमो, राइट। सो
ये हमारा यहाँ का लेक्चर यहाँ पे मैं एंड करूँगा, राइट? ओके, फॉर एनी फर्दर रिगार्डिंग द कोर्स uh, you can I am sharing you my course details here. You can check there. So you can contact us regarding any course or especially CompTIA Security Plus or further details or any query, right? Thank you. Allah Hafiz.